everyone. Today we have gathered here to have a workshop on Introduction to Latex. The workshop will be taken by Mr. Harsh Agarwal. He is from the Department of Electrical Engineering, Part 3. Bhaiya, you are good to go. Okay. So let me present the screen. Is everyone able to see the screen? Yes. Okay. So hi everyone. Uh, so do you know about latex? Anyone? Hello. You can just scan the Slido code and you can have the poll answered there. We will try to keep it a little interactive. The poll. Yeah, I got 4 responses. Yeah, you can reply in the chat box also. Okay, first answer me if anyone has problem with the Hindi language. No, we do not have any problem. Please proceed. हिंदी में ही कंटिन्यू कीजिए। Yes, हिंदी में कंटिन्यू करो आप। ठीक है। So what is latex? So latex is a document preparation system for producing professional looking documents. So latex अभी तक हम लोग Microsoft Word के बारे में जानते हो ना? हाँ भैया। हाँ, तो Microsoft Word का जैसे क्या सीन था कि अपन लेटेक्स और Microsoft Word में डिफरेंस ये है कि हम लोग Microsoft Word में what you see is what you get. मतलब Microsoft Word में तुम लोग जो देखते हो वही तुम लोग जो बनाते हो एग्जैक्ट वही चीज बन के आता है तुम्हारे पास, तो तुम उसमें काफी सारे एडिटिंग कर सकते हो. तो लाइक दिस मींस दैट यू सी हाउ द फाइनल डॉक्यूमेंट विल लुक एज यू आर टाइपिंग. ओके, सो बट लेटेक्स के साथ ये सीन नहीं होता है. इट लुक्स लाइक वी आर कोडिंग समथिंग एंड वी गेट द फाइनल रिजल्ट समथिंग एल्स. So I'll be showing you some project. You will understand better from that. So try to open this link overleaf.com and try to code along with me. So have everyone opened Overleaf? You can indicate it in the chat box. If you will do it simultaneously, then it will be good. जब सब खोल लेंगे we will continue. So great. Is my screen visible now? Yeah, it is.
So let me show you an example what the latex is. So you can see it from here. LaTeX is a document presenting software. So you can make this document by typing some codes like this. It is looking in the left hand side, you can actually see the LaTeX programming, and in the right hand side you can see the final presentation you will get from the LaTeX. So and now coming back to the PPT. So LaTeX is a document preparation system for producing professional looking documents, and it is particularly suited to producing long structured documents. Like when we go for the final talking about the some research paper publishing, then we use LaTeX software for that, because इसमें क्या है कि इक्वेशंस हम लोग लिखना बहुत इजी हो जाता है लेटेक्स में. सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे लेटेक्स में तो यही है कि इक्वेशंस लिखना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. उसमें कभी किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटेक्स इक्वेशंस लिखने की कोशिश की है क्या? नहीं. किसी ने की हो तो बताओ. स्पेशल कैरेक्टर्स भैया यूज करें बट इक्वेशंस वगैरह नहीं लिखेंगे. या एक्सपोनेंट्स वगैरह ऐड करने आते भी नहीं वर्ड्स में. ओके, तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इक्वेशंस लिखना. तो उसी का एडवांटेज रहता है लेटेक्स में कि इक्वेशंस लिखना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है. तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं. लेटेक्स इज बेस्ड ऑन ये लेटेक्स जो सॉफ्टवेयर है ये टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है. टाइप सेटिंग सिस्टम डिजाइन हुआ था डोनाल्ड नूथ एंड एवरीथिंग लाइक दैट. और टेक्स्ट इज अ लो लेवल लैंग्वेज दैट कैन कंप्यूटर्स work with. So now coming to the differences with the Microsoft Word, as I told that what you see is what you get. This means that you see how the final document will look as you're typing in the Microsoft Word. But when we come to the LaTeX, I told you earlier, we do not see how the final document will look like while you are typing it. This allows you to concentrate on the content rather than appearance. So we will so you will all start typing these things. I will show you in the PPT, or I will show you in the overleaf also. Like have you opened the overleaf? Yes. So yeah. Yes भैया. So create a Yes भैया. there you will be seeing this option. Give project any name, like I'm giving workshop 1. So after creating this workshop, you will get a text file. Is everyone getting this? Hello. Yes भैया. Yes. 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 So you can just delete everything there and type these things, like what I'm showing you in the current document. Is everyone able to see it now? Yes. Yes. Okay. So just type it and click here in the recompile section and check what you get the result.
A sentence of text is printed there. या तो इसमें क्या सीन हुआ कि सबसे पहले जब हमने ये डॉक्यूमेंट, इसमें लेटेक्स में क्या सिस्टम होता है, सबसे तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ये सब एसेंशियल्स होता है, ये तुम्हारा एक लेटेक्स फाइल में हमेशा लिखना जरूरी होता है, लाइक डॉक्यूमेंट क्लास। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में, तुम जो लेटेक्स लिख रहे हो उसमें जो डॉक्यूमेंट बनना है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कि ये क्या है, आर्टिकल टाइप है। तो इसको, ये काफी टाइप का हो सकता है, जैसे आर्टिकल है, इसमें तुम्हारा बुक हो सकता है, पेपर हो सकता है, मतलब इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासेस होते हैं। उसके बेसिस में फर्दर तुम्हारा डिसाइड होता है कि ये मेन तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट बनना है वो किस टाइप का बनना है। So, is everyone getting it? What I'm saying? यस भैया। किसी को कभी भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है अनम्यूट करके तुरंत, तो मेरे लिए बताना काफी इजी हो जाएगा। तो जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट क्लासेस मैंने बोला वो होते हैं, आर्टिकल भी होता है, रिपोर्ट होता है, फिर प्रॉक होता है, बुक होता है, स्लाइड्स होता है। तो ये सब अलग अलग डॉक्यूमेंट में यूज होता है। लाइक आर्टिकल जो है वो छोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, फिर जो रिपोर्ट होता है वो बड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, जो फाइनल पेपर पब्लिश होता है वो सब के लिए रिपोर्ट यूज किया जाता है। फिर जो बुक का प्रिंटिंग होता है, तो देखना काफी सिमिलर, अभी लेटेक्स में तुम लोग लिखोगे तो उसमें देखना काफी सिमिलर बुक से मिलता जुलता तुम्हारा फाइनल प्रीव्यू आएगा। तो बुक्स भी इसमें लिखे जाते हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्लास बुक यूज किया जा सकता है। तो वो सब उसके अकॉर्डिंगली बिल्ड किया गया, उसके अंदर के फंक्शंस जो हैं। अच्छा, किसी ने पहले कभी कोडिंग की है क्या? हाँ भाई। किसी को कुछ कोडिंग के बारे में नहीं पता है, ऐसा कोई है क्या जिसको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है? पता है पर थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब ऐसा कोई है क्या कि जिसको कुछ नहीं पता है? बोल सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है। मैं भी जब आया था तो मुझे भी कुछ नहीं आता था कॉलेज में। मतलब मान के चलूं कि सबको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है। हाँ हाँ भैया, भाई। थोड़ी बड़ी आती है। क्या? हाँ भी आती है थोड़ी मोड़ी, चलो उतना तो कर ही लेते हैं। C++। हाँ, तो ये इस टाइप का, मतलब HTML के सिमिलर है, C++ एग्जैक्टली नहीं, लेकिन काफी तुम लोग उसे सिमिलैरिटी बिठा सकते हो। लाइक कभी C++ में किया होगा कि क्लास डिफाइन करते हैं, वैसे ही इसमें भी है, डॉक्यूमेंट क्लास डिफाइन किया। फिर फर्दर मतलब डिफरेंट है, लेकिन हल्का सिमिलैरिटी तुम लोग बिठा के इसको समझ सकते हो कि सेम है, कि एक क्लास डिफाइन करके उसमें हम लोग ये जो A4 पेपर और 12 पॉइंट किए हैं, कि ये हम लोग डिसाइड करें कि डॉक्यूमेंट फाइनल जो प्रीव्यू होगा डॉक्यूमेंट का वो किस टाइप का होगा। लाइक ये जब PDF में कन्वर्ट होगा तो ये A4 पेपर टाइप का होगा, और उसमें जो ये 12, ये ऊपर का हेड स्पेस बताता है कि ऊपर तुम्हारा हेड स्पेस कितना छोड़ना है, ये चीज। सो और नेक्स्ट लाइन है फिर ये बिगिन डॉक्यूमेंट वाला। तो ये जो भी तुम्हारे लेटेक्स फाइल में फाइनल प्रीव्यू होगा तो वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के स्पेस के बीच में लिखा जाएगा। तो जो भी इसके बीच में तुम लिखोगे वो तुम्हारे फाइनल डॉक्यूमेंट में प्रीव्यू होगा। सो लाइक मैं लिख देता हूँ इधर, माय नेम इज and I am currently so ये as it is मेरे पास लेटेक्स फाइल में लिखा हुआ मिल जाएगा, देखो। सो और इसके ऊपर जो भी लिखा जाएगा वो उसका कोई मतलब नहीं होगा। सो मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे एनीथिंग इधर लिख दिया, तो ये जब कंपाइल होगा तो फिर फाइनल प्रीव्यू हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एरर दे रहा है, लेटेक्स एरर मिसिंग बिगिन डॉक्यूमेंट। तो ये इधर फाइनल प्रीव्यू कर दिया, लेकिन ये एक एरर होता है जो फाइनल तुम्हारा इशू करेगा। तो जो भी चीज तुमको एक्चुअली में प्रीव्यू करना है वो हमेशा बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच के स्टेटमेंट्स में लिखाएगा। तो वापस से कंपाइल कर देता हूँ। या तो किसी को कुछ डाउट है तो यार पूछते जाना,
ऐसे मतलब मुझे लग रहा है कि मैं बस लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, बोले जा रहा हूँ। भैया ये 12 पॉइंट क्या है? ये ऊपर के तुम्हारे हेड स्पेस के बारे में बताता है कि ऊपर में हेड स्पेस कितना देना है तुम्हें। 12 पॉइंट जो है, तो इधर नंबर्स लिखे होंगे। तो चेंज करके देखो जैसे। सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा बेसिक होता है कि साइज क्या होगा तुम्हारे टेक्स्ट का, ये बताएगा। जैसे मैं पहले से इसको सेट कर सकता हूँ, तुम डॉक्यूमेंट के बीच में भी कभी भी इसको डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट में बेसिक जो टेक्स्ट का साइज होगा वो क्या होगा। लेकिन ये पहले से तुमको कुछ बता के चलना है कि ये अगर इसको कुछ नहीं भी डालते हो तो भी चलता है, कि ये डिफॉल्ट में जो होगा इसका 12 पॉइंट ही होता है, तो वही वो साइज ले लेगा। लेकिन अगर तुमको पहले से डिसाइड करके चलना है कि मेरे टेक्स्ट में 10 पॉइंट का ही वो होना चाहिए, बेसिक डिफॉल्ट साइज होना चाहिए टेक्स्ट का, तो वो ये डिसाइड करता है 10 पॉइंट 12 पॉइंट। यस भैया। ठीक है, यस। तो और कुछ किसी को? भैया ये जो लास्ट में ये जो कंपाइल करने के बाद ये जो अपन लोग प्रिंट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट बॉडी के बीच में जा रहा है सर। भैया एक बार किनारे नहीं हो सकता क्या ये? जैसे हो सकता है इसका वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है, वो मैं आगे बताऊंगा, उसमें देखना। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो और कुछ? नो भैया, कंटिन्यू। चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड में, तो अब हम लोग का जो भी कोई भी फाइल होता है तो उसका एक टाइटल क्रिएट कर सकते हैं अपन कि उसमें अच्छा पहले इसको लिखो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये जो लिखा है इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दो और मुझे बताओ क्या तुम्हारा फाइनल आउटपुट आता है। मेक टाइटल जो होगा वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखाएगा। तो तुम अपने पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ का कुछ टाइटल डिसाइड करोगे, लाइक तुम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो उसका हेडिंग होता है, उसके ऑथर कौन है, डेट क्या है उस पेपर के प्रेजेंट का। तो वो सब देने के लिए तुम ये लाइंस का यूज करते हो, टाइटल, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑथर, माय नेम एंड डेट टुडे। और ये जो मेक टाइटल होता है ये फाइनल तुम्हारा डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करने के लिए होता है, ये लाइन। सो मेक टाइटल को बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में रखना और इसको लिख के ट्राई करो क्या आता है रिजल्ट। भैया मैं जब यहाँ पे ऐसे ऑथर वगैरह आ रहा तो यहाँ पे काफी सारे ये आ रहा है, वहाँ पे CMD PKG ऐसे लिखा आ रहा है, उसमें क्या है, वो क्या है? सीएमडी, तुमने मेक टाइटल बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखा है हाँ। और बाकी सारी लाइंस है वो मतलब बाहर है, अंदर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं वह CMD और PKG क्या है, मतलब कमांड कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड और पैकेज। कमांड और पैकेज कहाँ पर, तुम्हें इशू कहाँ पर आया? कंपाइल इश्यू करने नहीं, के बाद दिखा रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, जैसे तो ही अगर मैं मेक टाइटल का सिर्फ पहले सिर्फ M लिखूं जी, तो हाँ, वहाँ पे काफी सारे फंक्शंस आते हैं ना, जैसे तो तो वो वहाँ पे CMD PKG ऐसे लिखे आ रहा। अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट क्लास है, तुम इसमें ओवरलीफ में काफी अच्छा सपोर्ट रहता है कि तुम कुछ भी लिखना चाहो। हाँ जैसे हाँ, मैं ये देखो तो CMD ये PKG। सब ऑप्शंस दे देते हैं, ये सब पैकेजेस हैं, ये सब मैं ओके बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चलने दो। ओके। तो ये तो मतलब ओवरलीफ में काफी सही है कि तुम थोड़ा सा लिखो, अगर इसको आसपास होता है तो तुम सीधा एंटर मार के आगे बढ़ सकते हो। लाइक मैं एक टाइटल लिखना चाहूँ तो ये पहले से ऑप्शन दे देता है, एक टाइटल का ऑप्शन दे रहा है, एंटर कर दिया। तो टाइप फॉर्मेटिंग हुआ, बहुत इजी हो जाता है इससे। तो इस टाइप का कुछ रिजल्ट आ रहा है क्या सबका? ये नहीं आ रहा सेम, मतलब माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट के बाद में ये सेंटेंस ऑफ टेक्स्ट लिखा रहा है ओनली।
सेंटेंस और टेक्स्ट ऑथर ऐसा तुम मतलब जो फॉर्मेटिंग करो। हाँ जो डेट लिखी, जो डेट है ना ये नहीं आ रही, और ओके, बाई नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो ऑथर बैकस्लैश डाले थे, चेक करो एक बार, कुछ एरर होगा। हाँ डाला था। क्या इशू हो रहा है? बाकी किसी का इशू आ रहा है क्या? नहीं भी आ रहा है, सेम आ रहा है एकदम। सेम आ रहा है? देखो यार, हाँ तुम भैया कुछ सेम आ इसमें एरर किए होगे, कर्ली ब्रैकेट नहीं डाले हो। ये काफी सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा बहुत होता है तो इसमें तुरंत वार्निंग दे देता है, वार्निंग एरर्स दे देता है। ट्राई करना कि जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करो, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ लो। तो अगर ये सबने कर लिया है तो आगे बढ़ो। इसमें कुछ और जैसे ये जो टाइटल हुआ, ये टाइटल तुम्हारे मेन पूरे डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो हो रहा है ये सबसे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में। फिर फर्दर ये ऑथर, यहाँ पर तुम कुछ भी डाल सकते हो, लाइक माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट में तुम डाल सकते हो सेकंड डॉक्यूमेंट डालो यार, क्या टेंशन है, सेकंड डॉक्यूमेंट। तो ये तुम्हारा बेसिक टाइटल होता है, इसमें अपना नाम डाल सकते हो जो तुम ऑथर जो भी है, लाइक मैं हर्ष डाल दे रहा हूँ। और ये टुडे तो डेट है, इसमें तुम एग्जैक्ट डेट भी डाल सकते हो जब का तुम डालना चाहो। तो ये इस टाइप का भी आ सकता है। तो इसमें आज का टुडे डेट मतलब इजी है ये फॉर्मेटिंग डेट का। टुडे डाल दिया तो सीधे तुम्हारा लेटेस्ट डेट उठा लेता है ये, जिस समय कंपाइल होगा। और जो फाइनल ये जो मेक टाइटल लाइन है, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करने के लिए काम आता है। लाइक मैं अगर ये मेक टाइटल लाइन हटा दूं, तब ये तुम्हारा प्रेजेंट नहीं करेगा मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल होने के बावजूद भी। सिंपल तुम्हारा प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अगर बिगिन जो भी तुम प्रेजेंट करना है तुमको फाइनल डॉक्यूमेंट में, तो वो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच के स्टेटमेंट्स में ही होना चाहिए। उसी लिए मेक टाइटल बीच में लिखा गया है। ये सब स्टेटमेंट्स भी तुम बीच में लिख सकते हो, लेकिन सजेस्ट करता हूँ कि बाहर ही लिखो। तो किसी को कुछ इशू है तो वो पूछ सकता है वो। भैया एक डाउट है, यहाँ पर जो फॉन्ट, ये फॉन्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फॉन्ट क्या हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही फॉन्ट का यूज करें? हाँ, क्योंकि जो इसमें तुम फर्स्ट लाइन, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर तुम डाल सकते हो कि तुम किस टाइप का यूज करना चाहते हो, उसको किस टाइप का दिखाना चाहते हो, तो वो तुम्हारे हाथ में होता है। इसमें तुम मतलब फॉन्ट डिक्रीज करने का क्या बोल रहे हो, कि किस टाइप का फॉन्ट? जैसे यहाँ पे भैया देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट लिखा, काफ़ी उसकी फॉन्ट चेंज, मतलब काफ़ी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, और जो नीचे जो हर्ष लिखा है उसका काफ़ी काफ़ी छोटा है वो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग की जो पूरा जो मतलब हम लोग ने लिखे सिर्फ एक ही फॉन्ट में हो? हाँ, लिख सकते हैं वो। उसका तुम ये तुम्हारा डिफॉल्ट डाला हुआ है, जैसे मेक टाइटल जो है ये फंक्शन जो डिफॉल्ट में लिखता है कि टाइटल को सबसे बड़ा डाला गया है, और फिर फर्दर उसे छोटा ऑथर और डेट का साइज होता है। तुम इसको एडिट कर सकते हो, लाइक इसमें मैं अगर स्लैश बोल्ड डाल दूं तो ये वर्क करना चाहिए। इशू दिया, अच्छा इसमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा वो मैं बाद में बताता हूँ, पैकेज मांग रहा है अभी। इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, लाइक सी प्लस प्लस में भी तुम लोग यूज करते हो, तो फिर उसमें काफी सारे फंक्शंस के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर किसी ने कभी पाइथन यूज किया है तो मैं उससे बता सकता हूँ, या फिर सी प्लस प्लस में ही यार काफी सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे डेट के लिए अलग तुमको डेट टाइम इंपोर्ट करना पड़ता है, जो हैशटैग डिफाइन करके यूज करते हो। तो उस टाइप का ही होता है, इसमें यूज पैकेज करके तुम काफी सारे पैकेजेस इंपोर्ट कर सकते हो, जो पूछ रहा था कोई पैकेज का। अच्छा वो मैं फर्दर बताता हूँ, अभी क्लियर नहीं होगा तो। क्या इशू हो गया किसी को भैया बताया ऐसे हुआ तो HTML में भी होता है ना, HTML में भी हम लोग टाइटल 1 टाइटल 2 रख के इसे रखते हैं, तो फिर उसमें हाँ भी फॉन्ट चेंज होता रहता है।
हाँ, इसमें भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो तुम। मैं फर्दर बताऊंगा फॉन्ट कैसे चेंज हो रहा है, वो सब मैं बता रहा हूँ। ओके अभी इतना समझ में आया क्या? इसमें कुछ इशू है तो? नो भैया ओके further, तो अब सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अपन जैसे तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स देखते हो तो उसमें काफी सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। कभी भी पूरा डॉक्यूमेंट अगर प्लेन होगा तो वो काफी ऑड सा लगेगा, तो उसको हमेशा सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। चैप्टर्स भी होता है, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, और चैप्टर के अंदर भी फर्दर फर्दर पार्ट्स डिवाइड किया जाता है। तो वो सब डिवाइड करने के लिए सेक्शंस का यूज किया जाता है। So you should divide chapters into chapters, sections and subsections. The following section commands are available for the article class. So article जैसे ये जो क्लास है, हम लोग आर्टिकल क्लास यूज किए थे डॉक्यूमेंट क्लास में। सो आर्टिकल क्लास में ये 5 टाइप के सेक्शंस को यूज किया जाता है: सेक्शन, सबसेक्शन, सब सेक्शन, पैराग्राफ और सब पैराग्राफ। तो अपन मतलब मोस्टली जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो सेक्शन, सबसेक्शन और मतलब बहुत एक्सट्रीम केस में सब सेक्शन जाया जाता है। जैसा इसमें एग्जांपल देता हूँ, ये टाइप करो, सेंटेंस ऑफ टेक्स्ट जो लिखा था उसको हटा के ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये एडिट कर दो। इन दिख रहा है ना? हेलो? हाँ भैया हाँ भैया, बढ़िया। हाँ भैया। तो ये टाइप करके देखो क्या आ रहा है। तो इसमें जो पहला ये सेक्शन है, ये मैं जैसे इंट्रोडक्शन सेक्शन डाल दिया। इसमें तुम कुछ भी, ये जो होगा सेक्शन के अंदर जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा, ये तुम्हारा सेक्शन का नाम होता है। लाइक ये सेक्शन इंट्रोडक्शन है, फिर सेकंड सेक्शन जो डाला है वो मेथड्स डाला है। सेक्शन के अंदर दो सबसेक्शन क्रिएट किया गया है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, और फिर थर्ड सेक्शन है वो रिजल्ट्स है। तो इस टाइप का कुछ फाइनल इसका आउटपुट आया कि इंट्रोडक्शन, दिस इज द इंट्रोडक्शन, एंड सेकंड फंक्शन तो था मेथड्स, तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2, थर्ड रिजल्ट्स हो गया, तो हियर आर माय रिजल्ट्स। तो इस टाइप का कुछ फाइनल आउटपुट आएगा। हेलो भैया। हाँ हाँ, इसमें जो सेंटेंस लिखा था आपने सब सेक्शन में, मैंने उसमें पार्ट के बाद एंटर मार के, मतलब मेरे को न्यू लाइन में एक और सेंटेंस चाहिए था। तो सोर्स में तो मैंने नीचे लिखा है, लेकिन वो मतलब जो इस साइड है वो दिखा नहीं रहा, मतलब वो सेम लाइन में ही आ रहा है बिना हाँ, तो स्पेस के। इसमें जो क्या है कि जैसे हेयर आर माय रिजल्ट्स, तो तुम ये बोल रहे हो ना, एंटर मार के इधर मैं लिख हाँ, दिया मेरे को नए लाइन में प्रिंट करना है तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये अच्छा नोटिस किया तुमने कि ये एक ही लाइन में तुम्हारा फर्दर प्रिंट करता है, दिस इज द हाँ फाइनल भाई। रिजल्ट। इसका दो तरीका हो सकता है। पहला तो तुम एक और एंटर दे दो, तो ये पैराग्राफ चेंज की तरह काम करेगा, और दिस इज द फाइनल रिजल्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में राइट होगा। तो इस टाइप का कुछ रिटर्न आएगा, हियर आर माय रिजल्ट्स और दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और ओके दूसरा जो तरीका होता है, मतलब ऑथेंटिक तरीका जो है लेटेक्स का, वो डबल बैकस्लैश दे दो, तो ये भी एक न्यू लाइन की तरह काम करता है। तो हियर आर माय रिजल्ट्स और नेक्स्ट लाइन में दिस इज द फाइनल रिजल्ट प्रिंट होगा। ओके, थैंक यू। भैया उसी लाइन में कंटिन्यू नहीं कर सकते क्या? जैसे हेयर आर माय रिजल्ट्स के बाद फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं, वो भी कर ऐसा सकते नहीं? हो, वो तो तुमको फर्दर, तुम उस लाइन में लिखना है तो तुम वहीं पर कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर नेक्स्ट लाइन एंटर मार के भी लिखोगे तब भी वो वहीं पर कंटिन्यू होगा। नया लाइन क्रिएट करने के लिए बैकस्लैश 2 बार डालना जरूरी होता है, लेटेक्स का ये सिस्टम है कि न्यू लाइन जैसे सी प्लस प्लस में कभी यूज किए होगे तो स्लैश बैकस्लैश एन लिखा जाता है नया लाइन जाने के लिए। तो उसी टाइप से इसमें लेटेक्स का फॉर्मेटिंग होता है कि डबल बैकस्लैश डलता है। मैं थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस का रेफरेंस ले सकता हूँ ना, किसी को कुछ इशू है तो बोल दो यार। ले सकते हैं भैया, ले कोई सकते हैं। नहीं।
तो इतना सबने लिख लिया क्या? भैया अभी नहीं लिखा, 1 मिनट। मतलब सब मत लिखो, मतलब एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। तुम लोग खुद से लिखोगे तो थोड़ा बहुत कुछ देखो, उसमें ट्वीक करके देखो कि ये चेंज कर रहा हूँ, तो कुछ चेंज होगा तो उससे तुम फर्दर डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज देख के तो समझ में आ रहा है। लिखने का यही मैं बोल रहा हूँ। जैसे उसने बहुत अच्छा डाउट पूछा कि हियर आर माय रिजल्ट्स और दिस इज द फाइनल रिजल्ट, नेक्स्ट लाइन में डालने का तरीका क्या होगा, तो इस टाइप का कुछ। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट इज द लेबलिंग। तो हम लोग जैसे ये सब सेक्शन जो बनाए, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, तो हम लोग इनको इन सबको लेबल कर सकते हैं कि फर्दर रेफरेंसिंग में काम आता है। लाइक कभी कभी देखे हो कि चेक इन दिस बुक्स में कोई बुक पढ़ते हो या रिसर्च पेपर लिखा होगा, तो उसमें प्रूफ के लिए ऐसा लिखा रहता है कि टेकिंग दिस इक्वेशन 1.2, फिर टेकिंग द सेक्शन दिस 1.2, 2.1, ऐसा उस टाइप का जो रेफरेंसिंग किया रहता है। तो उस टाइप का रेफरेंसिंग करने के लिए इजी तरीका होता है, ऐसा लेबल कर सकते हो तुम। लाइक मैं सेक्शन 1 को जो मेथड सेक्शन है इसको मैं लेबल कर देता हूँ, लेबल सेक्शन 1, और मैं फाइनल रिजल्ट्स में इसको मेंशन कर सकता हूँ ऐसा कि referring to section, reference section 1, section 1 will be the label of the method you are using। तो इसमें कुछ रैंडम सा वर्ड मत यूज करना कि इसमें जो तुम मेथड को लेबल करना चाहते हो, जो भी पैराग्राफ को या फिर जो भी सेक्शन को तुम लेबल करना चाहते हो, तो उसका रेफरेंसिंग रहना चाहिए। और फिर फर्दर फिर पेज रेफरेंस डाल सकते हो कि सेक्शन 1 कौन सा पेज में था, तो उसके लिए ये हो जाएगा। तो रिकम्पाइल करते हैं, देखो क्या फाइनल रिजल्ट आता है। ऐसा सीधा मुझे कोई स्पेसिफिक लिखना नहीं पड़ा कि मैं कौन सा सेक्शन को रिफर कर रहा हूँ, तो सीधा सीधा सेक्शन 2 था ये, तो सीधा सीधा मेरे पास आ गया कि रिफरिंग टू सेक्शन 2। इधर मैंने क्या लिखा था, रेफरेंस सेक्शन 1, सेक्शन 1 कौन सा था, मेथड्स था, तो रिफरिंग टू सेक्शन 2 ऑन पेज 1 था ये, फर्स्ट पेज में ही अपन काम कर रहे हैं तो पेज 1 में आ गया। अगर मैं इधर कोई नया सेक्शन कभी इंट्रोड्यूस कर दूं, सेक्शन सेकंड, और कुछ भी लिख दो, एनीथिंग, फिर से कंपाइल करें, तब यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होगा कि ये सेक्शन 3 है। तो ये काफी काम आता है कि तुम सीधा लेबल कर दो और उसको लेबलिंग को यूज कर सकते हो। तुम्हें कभी भी बाद में ट्वीक करना होगा तो तुमको इशू नहीं होगा कि मैं सब जगह चेंज करने जा रहा हूँ कि सेक्शन 2 यहाँ पर था तो इसको भी जहां जहां रिफर किया है वहां वहां पर वापस वापस चेंज करो, वो ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो ये काफी फायदेमंद होता है कि लेबलिंग। तो समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ। किसी को कुछ इशू है तो यार पूछते आना मुझे, बार बार मैं कितने बार बोलूंगा। तो गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। हाँ, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हो, कभी भी कोई भी रिसर्च पेपर रहेगा तो उसमें देखना हमेशा एक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किया जाता है कि इस पेपर में क्या क्या चीज कंटेंट क्रिएट किया गया है। तो वो सब क्रिएट करने का लेटेक्स में बहुत इजी तरीका होता है, सीधा सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखना रहता है। ये जो लाइन होता है बैकस्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये इनफ होता है कोई भी मतलब पूरा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। लाइक मैं बस यहाँ पर मेक टाइटल के नीचे यहाँ पर जाके लिख दूं टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो ऑटोमेटिक एक कंटेंट पेज क्रिएट कर दे रहा है जिसमें तुम्हारा जितना भी कंटेंट्स होगा वो एक कंटेंट में बन जाएगा। और इसको अगर तुम नए पेज में डालना चाहे तो ये लाइन प्रिंट कर सकते हो, लाइक पेज नंबरिंग। इसका बता रहा हूँ पेज नंबरिंग का क्या है काम। ये लिख के एक बार ट्राई करो यार, क्या फाइनल तुम लोग को रिजल्ट मिल रहा है।
सब मेरे साथ हो गया? हेलो? यस भैया। हाँ भैया। तो इतना लिखे क्या? अभी भैया इतना सारा लिखना है। इतना तक सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ भी आ रहा है। हाँ हाँ भैया भाई। समझ में आ रहा है, पर अभी ये पैरेलली वो कोडिंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा। हो गया भैया, लिख लिया। इसमें तुम मोबाइल और लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इसमें तुम देख के समझ सकते हो, बाकी लोग ट्राई करो कोड करने का, बस मतलब काफी अच्छा समझ में आएगा। तो ये जो तुम्हारा पेज नंबरिंग रोमन है, ये कौन बता सकता है ये किस लिए यूज किया गया है? किसी को कुछ ऑब्जर्व किया हो, कुछ चेंजेस? रोमन स्टाइल ये एक्चुअली में तुम बुक्स में देखे होगे कि कंटेंट्स का जो पेज नंबरिंग होता है वो छोटा मतलब रोमन लेटर्स में होता है 1 2 3 4, और फिर फर्दर जब ओरिजिनल कंटेंट चालू होता है तब वहां पर 1 2 3 4 दूसरा पेज नंबरिंग होता है। तो वो कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली है कि ये कंटेंट पेज तक तो हम रोमन नंबर 1 2 3 ऐसा कर सकते हैं। अगर मल्टीपल पेजेस का कंटेंट होगा तो ये 1 2 3 ऐसा पेजेस ये अलग रोमन नंबर्स में चलेंगे। तो मैंने वही यहाँ पर डिसाइड किया है कि पेज नंबरिंग जो है यहाँ पर रोमन कर दिया, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रिंट किया, फिर न्यू पेज में गया कि यहाँ पर अगर न्यू पेज हटा दूं तो फिर जो कंटेंट के जस्ट बाद कंटेंट चालू हो गया था, अपना इंट्रोडक्शन सेक्शंस चालू हो गए थे, तो उसको रोकने का तरीका हुआ कि पूरा नया पेज का ब्रेक डालने के लिए तो बैकस्लैश न्यू पेज का यूज किया गया, और फिर फर्दर पेज नंबरिंग अरेबिक। अरेबिक में क्या हुआ कि जो तुम्हारा ओरिजिनल जो पेज नंबरिंग होता है 1 2 3 4, उसको रिज्यूम करने के लिए पेज नंबरिंग अरेबिक का यूज किया गया। तो इतना तक सब टेबल ऑफ कंटेंट के बाद भैया, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद बैकस्लैश न्यू पेज क्यों डाला, पहले क्यों नहीं डाला? देखो, डाल के देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी कर रहे हो उसको देखो क्या होगा। तुम्हारा जो मेक टाइटल है वो उसके बाद एक नया पेज बनेगा, और ये रोमन नंबर 1 में होगा, फिर रोमन नंबर 2 में कंटेंट्स होगा, और फिर फर्दर कंटेंट्स के जस्ट बाद इंट्रोडक्शन जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है पीडीएफ का वो चालू हो जाता है। तो लेकिन कंटेंट का तुमको अलग ही पेज में रखना है, उसके दूसरे पेज से ही चालू करना था अगर तुमको, तो इसमें एक और न्यू पेज यहाँ पर डाल के देखो। यहाँ पर एक और न्यू पेज डाला तो ये पूरा पेज का ब्रेक दे देता है। तो कंटेंट्स के बाद एक और पेज का ब्रेक होगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज से, जैसा ये तुम देख सकते हो रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2 में तुम्हारा कंटेंट्स तक है, फिर जो असली तुम्हारा कंटेंट चालू हो रहा है वो इंट्रोडक्शन यहाँ से चालू हो रहा है, और उसमें रोमन नंबर अरेबिक लेटर्स में नंबरिंग होगा पेजेस का। तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है काफी अच्छा पीडीएफ्स का। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? यस भैया। हाँ भैया। किसी को कुछ हाँ भैया। डाउट है तो? चलो cool, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट होगा, तो जो सबने पूछा था कि फॉन्ट इफेक्ट्स जो डालना है, कौन पूछ रहा था कि इटैलिक में हो या फिर मतलब जो एक ही टाइप का तुमको डालना है? जैसे अगर तुमको ये सब जो था ये सिंपल एक ही टाइप का आ रहा था कि द सेकंड पार्ट ऑफ द मेथड्स, अगर तुमको इसमें कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, कोई चीज को इटैलिक करना हो, अलग अलग टाइप टेक्स्ट को एडिटिंग करना है,
तो उसका तरीका होता है तो फॉन्ट इफेक्ट्स बोलते हैं इसको। तो इसमें लेटेक्स में काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं, तो वो सब मैं दिखा देता हूँ। एक और सेक्शन मैंने क्रिएट किया है और उसमें फॉन्ट इफेक्ट्स नाम का, और उसमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स तुम देख सकते हो, इफेक्ट्स देख सकते हो। लाइक यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट IT यूज किया गया है। IT स्टैंड फॉर इटैलिक्स। तो इसके अंदर जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा वो इटैलिक्स में होगा। तो ये देख सकते हो कि इटैलिक्स में लिखा गया, वर्ड इन इटैलिक्स। फिर फर्दर जो टेक्स्ट L है ये स्लैंटेड में देता है। टेक्स्ट SL यूज करने से ये वर्ड्स को स्लैंट कर देगा हल्का, तो वर्ड्स स्लैंटेड हो गए हैं। इटैलिक्स और स्लैंटेड में अंतर होता है कि इटैलिक्स हल्का थिन होता है और वर्ड स्लैंटेड नॉर्मल टेक्स्ट में खाली उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे ट्विस्ट कर दिया जाता है। फिर फर्दर है स्मॉल कैपिटल होता है, SC टेक्स्ट SC होता है, वो कंप्लीटली कैपिटल लेटर्स में आउटपुट करने के लिए होता है। फिर टेक्स्ट BF हो गया, ये बोल्ड कर देगा। फिर टेक्स्ट TT हो गया, टेली टाइप कर देगा। मतलब ये टेक्स्ट टाइप्स होते हैं ना कि जो सैंस सेरिफ यूज करते हो, मतलब वर्ड प्रोसेसर में यूज करते हो अलग अलग टाइप के टेक्स्ट जो होते हैं, सैंस सेरिफ कर दिया, अरेबिक कर दिया, अलग अलग टाइप के जो टेक्स्ट होते हैं, तो वो सब करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। कि टेली टाइप अगर तुमको यूज करना है तो TT यूज किया, वर्ड्स इन टेली टाइप आ गया। फिर सैंस सेरिफ किया तो सैंस सेरिफ फॉन्ट में आ गया। फिर रोमन में यूज किया तो रोमन का तुम्हारा फॉन्ट आ रहा है। और फर्दर फिर अंडरलाइन करने के लिए स्लैश अंडरलाइन करके लिखोगे, कुछ भी लिखोगे यहाँ पर तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस। किसी को कुछ इशू है तो यार पूछते हैं ना। तो नेक्स्ट है फॉन्ट साइजेस का, जो एक जन पूछ रहा था कि फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है मुझे, अगर कुछ बड़ा करना है या फिर कुछ छोटा करना है। तो उसका तरीका ये होता है फॉन्ट साइजेस चेंज करने का कि तुम उसके आगे यूज कर सकते हो कि लाइक टाइनी बैकस्लैश टाइनी यूज करोगे तो उसके आगे का जो भी वर्ड्स होगा वो टाइनी होगा, मतलब वो छोटा लिखाएगा। फर्दर फिर स्क्रिप्ट साइज वर्ड्स, इस सब मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको ट्राई करना, थोड़ा बहुत लिखते रहो साथ में कि उसे क्लियर होगा। बाद में तुम लोग देख सकते हो, तुम लोगों को फर्दर कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखना हो तो उसमें काफी हेल्प मिलता है, एक पहले से कुछ छोटा सा प्रिपेयर हुआ हुआ रहता है। तो ये सब जो होता है ये हो गया तुम्हारा फॉन्ट साइजेस डिसाइड करने वाला। लाइक टाइनी वर्ड्स है तो ये काफी छोटा सा टाइनी वर्ड्स लिखा हुआ है। फिर जो स्क्रिप्ट साइज वर्ड्स है तो ये हल्का सा बड़ा आता है। फिर फुट साइज, उससे फुट नोट साइज हो गया, इससे बड़ा हो गया। फिर स्मॉल हो गया, फिर नॉर्मल साइज हुआ, फिर लार्ज, फिर कैपिटल में लार्ज लिख सकते हो। फिर ये बड़ा होता जाता है, फिर लार्ज वर्ड्स, फिर ह्यूज वर्ड्स। तो इतने टाइप ऑफ मतलब तुम फॉन्ट साइजेस इस तरह से डिसाइड कर सकते हो। जैसे तुम वर्ड में यूज करते होगे तो उसमें 1 2 3 4 ऐसा होता है ना, जिसमें साइज को सिलेक्ट करते हैं अपन और उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन लेटेक्स में फॉन्ट साइजेस को चेंज करने का ये तरीका होता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया। ये सब एक्चुअली में लेटेक्स का बेनिफिट्स नहीं है, ये सब हल्का डिसएडवांटेज होता है कि तुमको दिख नहीं रहा है तुम क्या लिख रहे हो, लेकिन लिखते जा रहे हो। तुमको असली इसमें बेनिफिट्स पता चलेगा जब इक्वेशंस लिखोगे, वो आखिरी आखिरी में आता हूँ। अभी ये सब बेसिक बेसिक है थोड़ा बहुत। फिर नेक्स्ट होता है फिगर। तुम लेटेक्स डॉक्यूमेंट्स में फिगर्स भी डाल सकते हो। तो लाइक तो मैं इसमें हम लोग ऐसे वर्ड में जैसे रहता है 12 13 14, मतलब हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, वैसा इसमें नहीं होगा नहीं क्या? नहीं, इसमें फॉन्ट साइज भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर जो फॉन्ट साइज था, यहाँ पर 12 पॉइंटर था। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़ा में डिसाइड करके पहले से और यूज कर सकते हो, वैसा इसमें वैसा नहीं होता है कि हर एक पॉइंट पे यूज कर सकते हो। इसमें फिक्स्ड है कि हाँ इतना ही साइजेस यूज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। इतना उतना इसमें यूज, इसमें जो तुमको डॉक्यूमेंट जब तुम लिखोगे या फिर रिसर्च पेपर जब लिखोगे तो उसमें जो बेसिक यूजेस रहता है ना, तो उतना ही इसमें सपोर्ट दिया गया है। इसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन फॉर्मेटिंग करना बहुत इजी होता है।
वही बेनिफिट है इसका। तो अब मैं फिगर डाल के बता रहा हूँ कि जैसे फिगर कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एक सेक्शन क्रिएट किया, फिगर, फिर इसमें एक सेकेंड, तो फिगर के बारे में, जैसे फिगर्स जो होता है, वो जो किसी ने पहले पूछा था कि पैकेजेस क्या होते हैं, तो इसमें सब कुछ पहले से लेटेक्स में इंपोर्ट नहीं किया जाता है, तो इसमें तुम फर्दर अपने से भी इंपोर्ट कर सकते हो। अलग अलग पैकेजेस डिफाइन किए गए। तो जब तुम्हें कोई फिगर डालना है या फिर फोटो तुमको कोई अपने डॉक्यूमेंट में डालना है, तो उसके लिए एक पैकेज तुमको डालना पड़ेगा अपने लेटेक्स में, ग्राफिक एक्स पैकेज। तो जो फिगर डालने का वो जो सिस्टम डाला हुआ है, वो यूज ऐसे तुम डाल सकते हो कि यूज पैकेज, फिर इसमें ग्राफिक एक्स, ये इसको तुम जैसे एंटर कर दोगे, तो इसमें जितने भी ग्राफिक एक्स में जितने भी तुम्हारे फंक्शंस हैं, वो तुम्हारे इस लेटेक्स फाइल में इंपोर्ट हो जाते हैं, और तुम उन सब का यूज कर सकते हो। लाइक मैं एक सेक्शन फिगर क्रिएट किया हूँ, फिर इसमें एक बिगिन फिगर, तो ये जो है ये मेरा डिसाइड करता है कि फिगर मुझे डालना है, मतलब ये एक फिगर ब्लॉक है। तो इसमें तुम फोटो के बारे में तुम इंफॉर्मेशन दे सकते हो। फिर जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बिगिन फिगर, फिर जो ये जो एच है, ये होता है प्लेसमेंट स्पेसिफायर। एक जन पूछ रहा था कि मैं लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या टेक्स्ट को। तो उसको भी इस तरह से तुम कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में घुस गए और उसका तुम टाइप एडिटिंग कर दिए कि मुझे तो यूज करना है कि उसको लेफ्ट से, तो एल का यूज होता है लेफ्ट से जाने के लिए, और आर का यूज होता है राइट से जाने के लिए। तो वैसे ही होता है, एच इज द प्लेसमेंट स्पेसिफायर। अदर ऑप्शंस आर लाइक टी एट द बॉटम, मतलब टी जो होगा वो टॉप ऑफ द पेज में तुम्हारा फिगर इंट्रोड्यूस करेगा। ये जो है, ये तो तुम्हारा जो पर्टिकुलर पोजीशन में तुम इंट्रोड्यूस किए हो वहीं पर तुम्हारा एग्जैक्ट फिगर डालेगा। लेकिन अगर तुमको पहले से डिसाइड करना है कि नहीं, मुझे तो टॉप ऑफ द पेज, मतलब जहां पर ये है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मेरा आ रहा था फिगर, लेकिन तुमको डिसाइड करना है कि यहाँ पर आना चाहिए मेरा फिगर सबसे टॉप ऑफ द पेज में, तो उसका यहाँ पर तुम टी डाल सकते हो। वैसे ही बॉटम ऑफ द पेज तुमको करना है तो बी डाल सकते हो। फिर अगर दूसरे पेजेस में जहां पर सारे फिगर्स है वहां पर उसको करने के लिए पी डाल सकते हो। वैसे ही होता है। तो फिर और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये तो लेटेक्स का ओवरलोड करने के लिए, मतलब इसको तुम हटा भी सकते हो, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। फिर फर्दर हो गया ये सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या करता है कि फिगर को बीच में ले आएगा, सेंटर ऑफ द पेज ले आएगा। फिर फर्दर इंक्लूड ग्राफिक्स होता है, ये ओरिजिनल फंक्शन है जो तुम्हारा फोटो को इंक्लूड करेगा। तो ये तो ब्लॉक हो गया। फिर फर्दर इंक्लूड ग्राफिक्स जो फंक्शन है, ये फोटो को इंट्रोड्यूस करने का काम आता है। तो ये जो बर्ड है, यहाँ पर फाइल नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम अपलोड कर सकते हो एक फाइल। लाइक मैं यहाँ पर एक फाइल डाल देता हूँ, जैसे ये बर्ड है। इसमें ध्यान रखने का चीज है कि लेटेक्स सारा पीडीएफ इमेज फाइल सपोर्ट नहीं करता है। इमेजेस को सिर्फ पीडीएफ, पीएनजी, जेपीईजी और जीआईएफ फाइल्स ही सपोर्ट करता है। तो इतना सब वो क्लियर है क्या? हाँ, क्लियर है। ठीक है। तो ये जो बर्ड है, ये फाइल नेम होगा। फिर फर्दर यहाँ पर हाइट और विड्थ तुम स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस हाइट का तुमको फोटो चाहिए, जो फोटो तुमको डालना है। फिर फर्दर ये कैप्शन हो गया कि बर्ड में फिगर, इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर मेथड्स के बाद इसको इंपोर्ट किया तो फिगर को, तो यहाँ पर एक फिगर आया है, इसका कैप्शनिंग किया गया है बर्ड। तो ये जो कैप्शन है यहाँ पर तुम डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर कैप्शन में अगर मैं डाल देता यूनिवर्स, तो यहाँ पर कैप्शनिंग में यूनिवर्स आ जाएगा। और ये होता है जो लेबल मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि सेक्शन, कोई भी सेक्शंस को लेबल किया जा सकता है, वैसे ही कोई भी फिगर्स को भी लेबल किया जा सकता है। तो ये लेबल इमेज बर्ड के नाम से लेबल्ड है। तो तुमको कभी भी एक्सेस करना हो तो इसको इमेज बर्ड से एक्सेस किया जा सकता है इस लेबल नेम से। तो डिफरेंस करना है तो इसको डायरेक्ट रेफरेंसिंग कर सकते हो। तो लेबल का तो वही काम है, मतलब बहुत जरूरी नहीं होता है लेबल डालना। और कैप्शन हो गया तुम्हारा, अगर इसको कैप्शन करना है तो ये होता है तुम्हारा फिगर डालने का तरीका लेटेक्स में। किसी को कुछ डाउट है तो यार पूछते जाओ। इतना तक सबको क्लियर है क्या?
हाँ भैया तो भैया हाँ, फिगर yes. की भी साइज चेंज होती है इसमें, जैसे जी हम लोग वो फाइल में जितना रहेगी उतना ही देगा। हाँ, नहीं नहीं, तुम फिगर का साइज चेंज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का हाइट डाला हूँ, यहाँ पर मैं अगर 5 डाल दूँ, हाइट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका हाइट चेंज हो जाएगा फिगर का। ये देख सकते हो 5 हो चुका है। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर डाल दूँ तो 10 भी हो जाएगा। तो तुम फिगर का तुम्हारे हाथ में कि तुमको किस साइज में इंपोर्ट करना है। तो 10 इसके लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट पेज में चल गया है। ये तो फिगर की नंबरिंग कैसे होती है? फिगर की नंबरिंग, तो इसमें तुम्हारे जो फिगर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक नंबर होते हैं कि लाइक फिगर 1, फिगर 2, तुम्हारे जितने फर्स्ट फिगर को फिगर 1 को नंबर किया जाएगा, अगर सेकंड फिगर आएगा तो फिगर 2 नंबर होगा वो। और फिर फर्दर ये कैप्शनिंग हो गया, ये कैप्शन तो तुम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक नंबरिंग होती है, जैसे सेक्शंस की नंबरिंग है ऑटोमेटिक नंबरिंग है, वैसे ही ये फिगर की भी नंबरिंग ऑटोमेटिक होती है। तो तुमको अगर इसमें फिगर डायरेक्टली फिगर 1 की जगह FIG करके अगर मुझे लिखना हो तो उसके लिए क्या चीज, जैसे फिगर 1 लिखा है, समटाइम्स वी हैव टू राइट FIG ऐसे करके हम शॉर्ट में भी लिखते हैं, तो ये फिगर 1 जो लिया है वो सेक्शन का लिया होगा, जो हम लोग ने सेक्शन में ब्रेसेस में लिखा है। तो अगर तुमको FIG करके लिखना है, यस, शायद दूसरा फंक्शन होता था। कैप्शन एग्जैक्टली उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं अपन लोग, वैसे तो सीधा सी करके डाल देते हैं। ओके, लेकिन हाँ ये अच्छा है, गूगल सर्च कर सकते हो इसमें, तो ओ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। वो फिगर सेक्शन लिया है ना आपने, हाँ हम्म? सेक्शन फिगर, उसको चेंज करने से ये बदलेगा क्या? फिगर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये तो सेक्शन मैंने डाला है, जो स्टार्टिंग में सेक्शन बताया था तो वो है, तुम इसको हटा भी सकते हो। लाइक मैंने इसको सेक्शन फिगर पे डाला था, इसको मैं हटा भी, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तुम्हारा सीधा स्टेज 2 के बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द मेथड है, इसके जस्ट बाद तुम्हारा फिगर दिखा रहा है। भैया वो स्लैश बिगिन के अंदर जो फिगर लिखा है उसको अगर और कुछ लिखेंगे तो स्लैश बिगिन फिगर नहीं, ये ब्लॉक होता है, ये तुम्हारा ब्लॉक डिसाइड करता है। लाइक तुमको कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, लाइक बिगिन डॉक्यूमेंट था, HTML तुम लोग यूज किया नहीं। इसमें जो है बिगिन फिगर जो होता है, ये तुम्हारा डिसाइड करता है कि हाँ तुम्हारा अभी लेटेक्स को समझ में आता है कि यहाँ पर एक फिगर इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो ऐसा सिर्फ फिगर का नहीं होता है, ऐसा काफी सारा स्टेटमेंट्स होता है। लाइक तुम यूज कर सकते हो बिगिन इक्वेशन होता है, फिर इन्यूमरेट होता है, अलग अलग टाइप का होता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि ये जो अलग अलग फंक्शंस क्या होता है। ये तो फंक्शन ब्लॉक होता है कि इसमें तुम पहले से बता रहे हो कि हाँ इसमें जो है ये मेरे अंदर यहाँ पर एक फिगर टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो डिसाइड करने के और लिए ये आपने कैप्शन यूनिवर्स लिखा है ना अंदर, तो हाँ वो यूनिवर्स का फॉन्ट वॉन्ट वो सब चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर पिछला फॉन्टिंग, कोड फॉन्ट इफेक्ट जैसा मैंने बताया था यहाँ पर, जो, हाँ वो स्लैश टेक्स्ट करली आईटी कर, ब्रैकेट के अंदर। हाँ तो इसको जैसे तुम अगर चेंज करना चाहते हो, लाइक मैं इसमें बॉडी लिखता हूँ इटैलिक में, अगर मैं देना चाहता हूँ तो टेक्स्ट इटैलिक करके यहाँ पर सीधा वर्ड लिख दो, कंपाइल कर, तो जो ये तुम्हारा कैप्शनिंग होगा ये ऑटोमेटिक इटैलिक में हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, थैंक्स। तो और किसी को कुछ? हाँ भैया, जो एंड फिगर लिखा है आपने, वो मतलब एंड हर सेक्शन के बाद लगाते हैं क्या? हर सेक्शन के बाद नहीं लगता है, लाइक तुम्हारा सेक्शन जो है जहां पर तुम्हारा बिगिन होगा, बिगिन ब्लॉक जहां पर होगा तो वो एंड हमेशा एंड से होगा। तो बिगिन का डिसाइड करने के लिए एंड होता है। मतलब ओनली वन बिगिन एंड लगा सकते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में? क्या चीज? मतलब एक जब प्रोग्राम स्टार्ट किए सबसे ऊपर में बिगिन लगा दें और सबसे लास्ट में खत्म करने के बाद एंड। हाँ तो वो किया तो था, बिगिन डॉक्यूमेंट किया था ना, बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट इसके अंदर ही होगा, जो होगा तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंट का ब्लॉक ही यही है। तुम ओके इसके अंदर जो लिखोगे वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होगा। ओके भैया, ओके।
तो ये लेटेक्स का बेसिक है। फिर फर्दर तुम इसमें अगर तुमको कुछ डालना है, जैसे फिगर डाला तो फिगर का एक अलग ब्लॉक बना दिया। फिर अगर तुमको इक्वेशन डालना है तो बिगिन इक्वेशन करके, वो आगे मैं बताऊंगा इक्वेशन कैसे डालना है, तो वो डाल सकते हो। तो भैया उसके लिए सब साथ नहीं कर सकते क्या? जैसे कैसे? अपन लोग बिगिन डॉक्यूमेंट लिखे हैं, फिर उसी के नीचे अपन लोग बिगिन फिगर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? वही तो है, बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर ही तो है बिगिन फिगर। अगर यहाँ पर से मैं उठा के इसको ऊपर डाल दूं, लाइक बिगिन डॉक्यूमेंट था, मेक टाइटल के बाद कंटेंट के बाद डाल देता हूँ। तो फर्स्ट में अगर मैं फिगर ही डाल दूं, वो भी किया जा सकता है। ये बिगिन फिगर जो है, ये तुम्हारा फिगर का स्टार्ट डिसाइड कर रहा है कि हाँ यहाँ पर मेरा फिगर चालू होगा। तो कंटेंट के बाद जस्ट बाद मेरा फिगर आ गया सबसे पहले। ये तुम्हारा पोजीशन डिसाइड करता है कि हाँ मेरा यहाँ पर फिगर आना चालू हो गया, यहाँ पर मेरा फिगर है। लाइक ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन ब्लॉक बता रहा है कि हाँ मेरा यहाँ पर सेक्शन है। वैसे ये जो बिगिन फिगर है, ये तुम्हारा डिसाइड करता है कि यहाँ पर बिगिन है। लाइक अगर तुम यहाँ पर एच है, अगर मैं यहाँ पर बी डाल दूं, यहाँ पर तो तुमको एग्जैक्ट पोजिशनिंग तुमको मिल रहा है, तो इसीलिए डाउट हो रहा है। ये जो फिगर है, ये तुम्हारा बताता है कि ये पूरा जो भी तुम इसमें लिखे हो, ये पूरा फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो आखिरी में जैसे बी डाला, तो बी का मैंने क्या था, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट का था। जैसे बी का एट द बॉटम ऑफ द पेज, तो ये एकदम एग्जैक्ट बॉटम में डाल दिया फिगर को। लेकिन यहाँ पर एच डालो तो एच एग्जैक्ट जहां पर तुम लिखे हो उसको वहीं पर प्रिंट करता है। तो ये डिसाइड करने के लिए है। और किसी को और एक लाइन में 2 फिगर डाल सकते हैं? 2 फिगर इसी के अंदर डालना चाहो? और मतलब एक फिगर लेफ्ट में, एक फिगर राइट में, एक के नीचे हाँ, फिगर 1 लिखा हो, एक के नीचे फिगर 2 लिखा हो। वो भी किया जा सकता है। एडजस्ट कैसे करेंगे, समझेगा कैसे वो? इसमें होता है एक, वो एक ब्लॉक होता है बिगिन अलाइन का, तुम लोग यूज कर सकते हो। अच्छा। ये भी एक अलग ब्लॉक होता है। एंड अलाइन किया और फिर अगर सीधा यूज किया, फिगर इसको डायरेक्ट साथ में ही कर सकता है आई गेस। यहाँ पर तुम लोग डायरेक्ट इंक्लूड ग्राफिक्स करके एक और तुम लोग वो डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो। इंपोर्ट करो यहाँ पर एक फाइल और डाल के देखो होता है कि नहीं। ये बगल बगल में देता है, और अगर तुमको नेक्स्ट लाइन में डालना है तो यहाँ पर एक तुमको ऐसा डालना पड़ता है, तब वो नीचे आके शिफ्ट करता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा इंडेंटेशन, तुम्हारा पेज का ध्यान रहे कि अगर तुम्हारा पेज उतना बड़ा है ही नहीं तो 2 फिगर वो इंपोर्ट कैसे करेगा साथ में। तो उसका इशू आ जाता है, उसमें वार्निंग देने लगता है। लेटेक्स एरर नहीं देता है, वार्निंग देने लगता है। अच्छा। और किसी को कुछ? ये जो सेंटरिंग है, अगर भैया सेंटरिंग हमें लेफ्ट और राइट लिखना होगा तो फिर हम लेफ्ट और राइट मेंशन करेंगे। नहीं, सेंटरिंग एग्जैक्ट एक वर्ड है, जैसे मैं हटा दूं तो ये ऑटोमेटिक लेफ्ट में ही रहता है। ओके। सेंटरिंग में देखो, ये लेफ्ट में ऑटोमेटिक फिगर गया है, लेकिन अगर हमको स्पेसिफाई करना है कि हाँ ये सेंटर में हो, तब यूज करते हैं सेंटर। अगर इन केस हमें राइट में करना हो, अगर राइट में करना है तो इसका राइट इंडेंटेशन होता था कुछ, माइक में इशू आ रहा है देखो। हेलो। हाँ भैया, you can continue. ओके। तो राइट और लेफ्ट का जो है वो अलग अलग तुम लोग ब्लॉक्स डिसाइड कर सकते हो। इसमें जैसे सेंटरिंग जो है, ये तो तुम्हारा सीधा सेंटर करने के लिए होता है। अगर तुमको सब कुछ को राइट करना है तो उसका एक और ब्लॉक होता है, अलाइन बिगिन अलाइन करके तुम उसमें उसको राइट इंडेक्सिंग कर सकते हो, आर डाल सकते हो उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में।
तो वो तुम्हारा सारा का सारा टेक्स्ट जो भी उसके अंदर लिखोगे उस ब्लॉक के अंदर, तो वो सीधा सीधा राइट में कर सकता है, या फिर लेफ्ट में करोगे तो एल लिख के उसको पूरा पूरा लेफ्ट में कर सकता है। तो वो अलाइनमेंट का पार्ट होता है लेटेक्स में। तो ये मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ होता है लेटेक्स में, मतलब तुम अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो इतना चीज है ना लेटेक्स में। लाइक मैं अगर लेटेक्स का डॉक्यूमेंटेशन खोलूं तो इसमें इतना सारा फंक्शंस है, इतना सारा पैकेजेस है, तुम मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये तो एक बेसिक है। तो जो जैसे अलाइनमेंट का है, तो लेटेक्स अलाइनमेंट डॉक्यूमेंटेशन, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट ओवरलीफ का जैसे आ गया। तो इसमें पूरा जो भी तुमको देखना है, तुमको जिस टाइप से अलाइन करना है, वो सब के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट, तो फ्लश राइट करके, बिगिन फ्लश राइट करके उसमें जो भी तुम लिखोगे वो ऑटोमेटिक वो राइट की तरफ शिफ्टेड होगा। तो ऐसा होता है। तो और किसी को कुछ डाउट है तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में। यार रिप्लाई करते जाओ, तो लग रहा है वो ऑडियो। अब नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट फीचर लेटेक्स का, इक्वेशंस इंपोर्ट करना। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था कि सबसे इसका बेस्ट फीचर ही है इक्वेशंस लिखना। तो अब अपन आते हैं कि इक्वेशंस कैसे लिखना है। तो एक सेक्शन मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो इसमें जैसे इक्वेशंस, मतलब ऐसा तुम लोग नहीं भी करना चाहते तो तुम लोग कहीं पर भी इक्वेशंस का यूज कर सकते हो। तो जब भी इक्वेशंस लिखाएंगे लेटेक्स में, जब भी जो भी इक्वेशन लिखा जाता है वो मैथ ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है हमेशा। और मैथ ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, यहाँ से मैं बताता हूँ, यू कैन मैथ मोड में एंटर किया जाता है। तो मैथ मोड जब भी होगा वो डॉलर साइन के अंदर होगा। तो डॉलर साइन के अंदर तुम लोग जो भी लिखोगे वो मैथ मोड के अंदर लिखाता है। तो इक्वेशंस लाइक टाइपिंग 1 + 2 = 3, अगर ये भी तुमको लिखना है तो तुम सीधा सीधा लिख सकते हो इसमें 1 + 2 = 3। तो देखो क्या प्रिंट होता है। ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर तुमको इसमें लाइक अगर तुमको कोई कॉम्प्लिकेटेड वो यूज करना है, लाइक मल्टीप्लिकेशन, अगर तुमको पर्टिकुलर इक्वेशन, जैसे ये तो सिंपल एक इक्वेशन हुआ, तो ये तो तुम्हारा सीधा टेक्स्ट की तरह इंपोर्ट करके इसमें प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर तुमको इसमें मैथ, इसको दिखाना है कि हाँ ये मैथ फंक्शन है, तो इसको डॉलर साइन के अंदर लिखा जाता है। तो डॉलर साइन के अंदर जो भी लिखा रहेगा तो वो डिफाइन कर देता है कि हाँ ये मैथ का फंक्शन है। तो 1 + 2 = 3, ये एक इक्वेशन डिफाइन हो गया लेटेक्स के अंदर। इसको लेटेक्स को भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो किसी को कुछ इशू है क्या यहाँ पर? और फिर जैसे अगर तुम लोग मल्टीपल अगर मैथ का इक्वेशन लिखना चाहो एक ही लाइन में, तो ऐसा कर सकते हो कि एक ही लाइन में लिखते गए। तो ये जो होगा ये एक ही लाइन में प्रिंट करता है मल्टीपल मैथ के इक्वेशंस को, 1 + 2 = 3, और फिर फर्दर अगर तो ऐसा 2 + 3 = 4, ऐसा प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर तुमको एक नया लाइन में प्रिंट करना है एक दूसरा मैथ का इक्वेशन, तो डबल डॉलर साइन के अंदर जो भी तुम लिखोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है। ऑटोमेटिक लाइन इंडेंटेशन करता है और वो सेंटर में ले आएगा उसको। देखो x + y = z ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में गया, जबकि मैंने सेम लाइन में लिखा है, लेकिन ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट लाइन में गया और सेंटरिंग कर दिया x + y = z। तो ये डबल डॉलर साइन का होता है इसमें एडवांटेज। फिर फर्दर अब आते हैं अपन इक्वेशन ब्लॉक का। किसी को कुछ इशू है तो यार पूछते आना। तो अपन अब इक्वेशन ब्लॉक में जैसे हो सकते हैं, जैसे ये जो मैथ फंक्शन है अपन डॉलर साइन के अंदर लिखे, लेकिन इसमें तुम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो कि बिगिन इक्वेशन एक ब्लॉक बनाया, और इसमें ये जो इक्वेशन ब्लॉक है इसमें ऑटोमेटिक मैथ मोड ही होता है। तो इसका डिफॉल्ट ही है कि मैथ मोड में रहेगा।
जैसे मैथ बोर्ड में तुम एंटर कर रहे थे डॉलर साइन का यूज करके, इसमें एंटर करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन जो होगा ये मैथ मोड के अंदर ही रहेगा। और इसमें तुम्हारा इक्वेशन नंबरिंग भी आता है कि 1 + 2 = 3, तो इक्वेशन 1 कर दिया। ऐसे ही अगर x + y = z करा, यहाँ पर x + y = z और a + b = c, यहाँ पर किया तो फिर ये ऑटोमेटिक नंबरिंग कर देगा दोनों इक्वेशंस को। तो अच्छा, बिगिन इक्वेशन जो होता है ये ऑटोमेटिक एक ही लाइन में प्रिंट करता है। इसको अगर तुमको स्प्लिट करना है तो यहाँ पर एक बिगिन स्प्लिट तुम यूज कर सकते हो। ये स्प्लिटिंग का काम करता है कि अगर तुमको इक्वेशंस को स्प्लिट करना है तो x + y = z और a + b = c, तो अलग अलग इक्वेशंस अनडिफाइंड, कुछ एरर दे रहा है। हेलो, बात समझ में आ रही है क्या सबको कि ऊपर से आ रहा है? ये नीचे क्यों नहीं गया? वो एक इसका सीन होता है, एक पैकेज में इंपोर्ट किया गया है स्प्लिट फंक्शन को, वो मैं इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो पैकेज है AMS मैथ, AMS सिम्ब और AMS फॉन्ट्स, तो ये सब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लेटेक्स में। ये काफी कॉमन फंक्शन है। तुमको अगर कोई भी एडवांस मैथमेटिक इक्वेशंस लिखना है तो उन सब में तुम्हारा ये सब पैकेजेस का इंपोर्ट करना तो मतलब एसेंशियल टाइप का ही हो जाता है। अब तो इसमें जैसे तुम देख सकते हो अलग अलग लाइन में जा चुका है ये x + y = z और ये सिंगल इक्वेशन नंबरिंग कर दिया है। और अगर तुमको इसमें अगर इक्वेशन नंबरिंग नहीं करना है तो इक्वेशन 4 करके तुम डिफाइन कर सकते हो, तो इसमें नंबरिंग नहीं करेगा इक्वेशंस को। तो इतना सबको क्लियर हो रहा है क्या? हाँ भैया। और नेक्स्ट है एक ब्लॉक होता है बिगिन इक्वेशन एरे, एक ब्लॉक होता है लेटेक्स में। तो उसका यूज होता है कि ऐसे ही मल्टीपल इक्वेशंस, जैसे जो मैंने बिगिन इक्वेशन स्प्लिट और इक्वेशन स्प्लिट का यूज करके किया, तो वो इक्वेशन एरे डायरेक्ट वही चीज कर सकता है। वो जो मैंने यहाँ पर x + y = z और a + b = c किया, वही चीज सेम चीज इक्वेशन एरे एक लाइन में कर सकता है। दो फंक्शंस में कोई यूज नहीं करना पड़ेगा। a + b + c और y - z। और ये जो डॉलर साइन होता है, डॉलर साइन तुम्हारा लाइन को इक्वेशंस को पर्टिकुलर एक जगह पे अलाइन करने के लिए होता है। तो एंड के नीचे ही एंड लगेगा ऑटोमेटिक। तो इक्वल्स टू जैसे बीच में आ गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लाइन सेम लाइन में आ गया, सेम एरिया में आ गया इक्वल्स टू। तो एंड का यूज करके ये डिसाइड कर देता है कि हाँ यहाँ पर इक्वेशन जाएगा और यहाँ पर नहीं जाएगा। और फिर फर्दर 2-4 फंक्शन और दिखा देता हूँ। या आपने पैकेज का नेम क्या बोला? AMS मैथ, AMS सिम और AMS फॉन्ट्स, यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग। ये 3 पैकेजेस काफी इंपॉर्टेंट पैकेजेस होते हैं। इतना के बाद अब ये कुछ इक्वेशंस है। लाइक तुमको अगर a² लिखना है तो वो लिखने का काफी आसान तरीका होता है कि सीधा a में फिर ये जो साइन होता है हैट साइन, फिर इसमें डाल के कर्ली ब्रेसेस के अंदर तुम जो भी डालोगे तो वो ऑटोमेटिक उसको पावर में चढ़ा देगा। तो a की पावर में स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर तुम लोग एक पूरा का पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हो, लाइक b + c। ये भी अगर करे तो a की पावर b + c लिखा जाएगा। a की पावर b + c। और वही अगर तुमको सबस्क्रिप्ट में डालना है तो 2_a कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो b - c, तो वही चीज लिखा जा सकता है सबस्क्रिप्ट में 2 की अंडर बेस b - c।
हाँ, तो इस टाइप से होता है सुपरस्क्रिप्ट और अंडरस्क्रिप्ट का। और फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है कि स्लैश फ्रैक्शन, ब्रैकेट में न्यूमरेटर और ब्रैकेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये सब मैं इससे बताता हूँ। पावर एंड इंडिसेस का जैसे बताया, फ्रैक्शंस का जो होता है वो स्लैश फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इससे लिख सकते हो। तो फर्दर रूट्स का होता है अंडर रूट बैकस्लैश स्क्वाट, और एक्स जो हो गया ये तुम्हारा, यहाँ पर से बता देता हूँ। तो स्क्वायर जो एक्स जो है ये तुम्हारा स्क्वायर रूट क्या चीज, टू दी पावर एक्स है, तो टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का, तो ये सबसे डिफाइन किया जा सकता है। तो और वैसे ही समेशन फंक्शन का ये होता है, इंटीग्रेशन लिख सकते हो। तो वैसे बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशंस भी बहुत सिंपल छोटा एक लाइन में लिखा जा सकता है। इतना छोटा समय इतना बड़ा इक्वेशन भी, मतलब अच्छा इक्वेशंस भी लिखा जा सकता है। इतना मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतना ईज नहीं होता है लिखने का, तो यही सब एडवांटेजेस होते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो यार पूछ लो। नहीं, बहुत पसंद आया बस ये। इसका मैं एक दिखा देता हूँ, एक मैंने वो लिखा था, ये एक फाइल है जैसे पूरा इसमें लिखा हुआ है, लेटेक्स में लिखा हुआ है। तो इतना मतलब ये सब जैसे तुम देख सकते हो पूरा ब्रैकेट्स में, तो ये छोटा छोटा में लिखा जाता है, काफी छोटा सा में RCD जैसे है। तो ये सब तुम उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में लिखने जाओगे तो बहुत दिक्कत होता है, तो ये सब एडवांटेजेस रहता है। काफी बड़ा बड़ा इक्वेशंस भी काफी इजी में लिखाता है। और किसी को कुछ पूछना है तो यार पूछ लो, तो फिर खत्म करते हैं। फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं क्या? कलर भी चेंज किया सकता है कि बैकस्लैश COLOR और उसमें तुम कलर मेंशन कर दोगे तो वो कलर भी चेंज किया जा सकता है। ये PDF डाल के उसके सोर्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। क्या चीज? मतलब इधर हम सोर्स, इधर कोड डाल दें तो फिर ये PDF मिलता है, तो इधर PDF डालेंगे तो इधर कोड मिलेगा। नहीं, वैसा नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है कि अगर तुम सोर्स डालोगे इधर PDF डाल दोगे तो सोर्स मिल जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो तुमको PDF का सोर्स जनरेट करके देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। मैंने एक बार यूज किया है तो बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो अगर तुमको कुछ भी तुम कभी लिख रहे हो तो यार मैक्सिमम काम तो गूगल सर्च करके ही करते हो। बहुत अच्छा से इसका ओवरलीफ का डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, तो उसको तुम लोग पढ़ सकते हो। बहुत कुछ भी यूज करना है तो सीधा सर्च किया गूगल में और ओवरलीफ का डॉक्यूमेंटेशन खोल के उसमें देख लिया, तो काफी अच्छा से समझ में आ जाता है। और तुम लोग को ये सब काम आएगा जब फर्दर रिसर्च पेपर लिखना होगा, तब काफी एडवांटेज रहेगा इसका, अगर पहले से नॉलेज है तो या और किसी को कुछ? फिर अपन सम अप करते हैं। Okay, so if no more doubts, anyone, so I guess we are ready to finish it, right? So yes, Ankita, do you have anything to ask? No, sir. Okay, Thank cool. So this is it. Again, on the behalf of SCS, we thank the speaker for today's wonderful session, and the patientful audience for listening it to the very end. Though it was a 1 hour workshop, but but since you all were determined, so we extended it by 20 minutes. So this is it. I'm stopping the recording. The recording will be available on our YouTube channel of SCS, and the PowerPoint presentation will also be shared. Right, Harsh Bhaiya? Yeah, I will share that. Oh.